Good morning, student. Today we will discuss about our chapter first of geography, that is India size and location. You know very well that India is a vast geographical area. Its area is near around 32.8 million square kilometer. इंडिया का जो एरिया है 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर हम एग्जैक्ट एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया का एग्जैक्ट एरिया है। India, then we can say that India is a vast country, but in India there is a geographical differences in geographical area. In north side of India, Himalayan mountain are situated, Aravalli mountain are situated, northeast side Suleiman, Kirthar ranges are situated, and Pir Panjal ranges are situated in northeast direction. Northwest direction Kirthar, Suleiman ranges are situated. Then we can say that northern part of India is covered by different ranges, but in southern part of India is covered by water bodies. Three sides of India is covered by water bodies. These are Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. Now we will discuss about the latitudinal and longitudinal extent of India. But first we discuss about the directions. There are two types of directions which are cardinal and intermediate direction. Cardinal and intermediates. Cardinal directions are north, south, east and west. In between these directions are intermediate directions. North, south, east and west are cardinal directions. In between these directions, northeast directions, southeast, southwest, northwest. In between these directions, which are situated in north northeast, south southwest. In between these, south east southeast and west northwest. In between these, south southeast, north northeast. These are intermediate directions. There are total 32 directions are in it. Now we will discuss about the length and width of India and latitudinal and longitudinal extent of India. India is situated in northeastern hemisphere. Then we can say that India is situated in northern hemisphere, but directions of India is east. Then we can say that India is situated in northeastern hemisphere. अगर हम बात करें कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन होने के कारण से हम इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बोलते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, बेटा दीज आर लैटिट्यूडनल लाइंस, दीज आर लैटिट्यूडनल लाइंस, ओके, दीज आर लैटिट्यूडनल लाइंस एंड दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड्स हैं और जो ये अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये लॉन्गिट्यूड्स हैं बेटा, लॉन्गिट्यूड्स।
आपने ग्लोब में देखा है कि जो ये लेटी हुई लाइंस हैं ये लैटिट्यूड्स, और जो ये खड़ी हुई लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं। और द डिफरेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर 15 डिग्री। बेटा 15 डिग्री का डिस्टेंस होता है हर लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में। ये अपना क्या है, नॉर्थ पोल विच इज सिचुएटेड इन 90 डिग्री नॉर्थ, and that is our south pole which is situated in 90 degree south. Total latitudinal lines are beta 181 because 0 degree equator line is also included. Equator is also included in latitudinal lines. But longitudinal lines are 180. Total numbers of latitudes are 180, and total lines, total degree are 360 degree. Okay, now we will discuss about our latitudinal and longitudinal extent of India. India is situated in between 8 degree 4th minute to 37 degree 6 minute north latitude. And 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute eastern longitudes. India is situated in between 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute northern latitude and 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute eastern longitudes. बेटा यहाँ हमेशा साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट जो है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मेजर किया जाता है। जो डायरेक्शंस बाद में काउंट की जाती है वही यहाँ पर मेंशन की जाती है, यानी कि लैटिट्यूड के पीछे नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड के पीछे ईस्ट मेंशन किया जाता है। इसके बाद हम इंडिया के एक्सटेंट को अगर हम किलोमीटर में देखें तो इंडिया की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इंडिया 3214 किलोमीटर है, और अगर हम विड्थ की बात करें तो 2933 किलोमीटर जो है इंडिया की विड्थ है। The length of India is 3214 kilometer and width of India is 2933 kilometer. That means north to south extent of India is larger than east to west extent of India. इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंडिया है ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है, यानी कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसमें कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का। और जो सनराइज होता है वो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में लाइज होता है बेटा, और वेस्ट में हमारा गुजरात है जहां सन जो है बाद में पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन अपना एक बनता है, व्हाई द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू सौराष्ट्र या गुजरात। तो उसका मेन रीजन क्या है, द अर्थ मूव या द अर्थ कवर 1 डिग्री लैटिट्यूड इन 4 मिनट, यानी कि अर्थ टेक 4 minutes to cover 1 degree latitude. That the difference between Arunachal Pradesh and Gujarat is 30 degree. So the earth cover 30 degree into 4, यानी कि 120 minutes। यानी कि अगर हम देखें तो जो अर्थ है हमारी 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगाती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। ये बेटा मिनट का सिंबल होता है, ये डिग्री का सिंबल होता है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। तो 30 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लेगी, 120 मिनट्स, यानी कि 2 hours।
ये रीजन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग में 2 आवर्स का डिफरेंस है। उसके बाद इंडिया की हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड, इसमें बेटा क्या क्या इंक्लूड है? आइलैंड, जो आइलैंड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो टोटल जो लेंथ है कोस्ट लाइन की वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। इसको राउंड फिगर में भी लिख देते हैं, ये 0.5 से ज़्यादा होने की वजह से एक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा, तो 7,517 किलोमीटर जो है इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है। अगर हम आइलैंड की बाउंड्री को इससे अलग कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री, टोटल वर्ड हट जाएगा यहां से, लेंथ ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर जो है इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है। उसके बाद हम अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो कौन से नेबर कंट्रीज हैं जिनके साथ अपनी लैंड बाउंड्री जो है कनेक्ट होती है, और सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री किस कंट्री के साथ में है इंडिया की? तो सबसे पहला जो कंट्री है जिसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री कनेक्ट होती है वो है बांग्लादेश। सेकंड जो कंट्री है जिसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री लगती है वो है चाइना। थर्ड है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आता है 4th नंबर पर नेपाल। उसके बाद 5th नंबर पर आता है म्यांमार। 6th नंबर पर आता है भूटान, और 7th पोजीशन जो है वो है अफगानिस्तान की। इंडिया की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री बांग्लादेश कंट्री के साथ लगती है, और वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम चाइना के साथ अपनी लैंड बाउंड्री की बात करें तो 3917 किलोमीटर जो है अपनी लैंड बाउंड्री चाइना के साथ जो है कनेक्ट होती है। पाकिस्तान के साथ बात करें तो 3310 किलोमीटर की जो है लेंथ वो पाकिस्तान कंट्री के साथ लगती है इंडिया की। उसके बाद नेपाल की बात करें तो 1792 किलोमीटर की लेंथ जो है हमारी लैंड बाउंड्री की नेपाल के साथ लगती है। म्यांमार के साथ बात करें तो 1458 किलोमीटर की लेंथ है जो म्यांमार के साथ अटैच है, और 587 किलोमीटर जो है हमारे भूटान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर हो रही है हमारी, और अफगानिस्तान शेयर्ड 80 किलोमीटर लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। उसके बाद अगर हम देखें इन डाटा को तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जिसके साथ अपनी सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है वो अटैच होती है। अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो कोस्टल लाइन जो है
गुजरात जो अपना स्टेट है, इंडिया की कोस्टल लाइन जो है, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन शेयर्ड बाय इंडिया। विद विच स्टेट बेटा? गुजरात। गुजरात स्टेट के साथ अपनी सबसे बड़ी जो है वो कोस्टल लाइन लगती है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश स्टेट का नाम। तो ये हमने कोस्टल लाइन के बारे में पढ़ा कि कोस्टल लाइन सबसे बड़ी जो है गुजरात स्टेट के साथ शेयर करता है इंडिया। उसके बाद गुजरात स्टेट जो है उसके साथ इंडिया अपनी कोस्टल लाइन जो है वो शेयर करता है। उसके बाद हम अगर इंडिया के साइज की बात कर रहे हैं तो साइज के अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट यानी कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया in terms of area, राजस्थान। एंड स्मॉलेस्ट में आएगा गोवा, स्मॉलेस्ट गोवा। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, which state has largest population in India? UP, Uttar Pradesh state. And smallest populated state of India, Sikkim. Sikkim is the smallest populated state of India. उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में इंडिया हैज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। विच आर द 6 मेजर कंट्री आर लार्जर देन इंडिया? फर्स्ट इज रसिया, देन चाइना, देन यूएसए, नेक्स्ट कनाडा, नेक्स्ट ब्राजील, and last one is Australia. These are the countries which are larger in size as compared to India. And in terms of population, India is stand in second position. India is second largest country of the world after China. China is the most populated country of the world. Its population is near around 141 crore according to census year 2011. And according to census year 2001, India has second most populous country of the world and its population is 102.08 crore. And in 2011 its population increased and stand in second position with the population of 121.03 crore. And now 2018 its population is near around 138 crore. That means India is the second most populous country of the world. Now we will discuss about the states and union territories of India. India has 28 states and 8 union territories. Eight union territories. In November 2019, India
has already declared Jammu and Kashmir state as union territory and included Diu and Daman with Dadar Nagar Haveli. Now India has 28 states and 8 union territories. Now we will discuss the neighbor country of India. In north direction, Nepal, Tibet, China and Russia are the major countries which are situated in the northeast and north direction of India. Particularly north-south directions, east direction, Bangladesh is situated, and northeast and east directions, Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia. There are so many countries which are situated in east and southeast. Myanmar is situated in southeast part of India. Only 2 neighbor countries are situated in south direction, which are Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka and Maldives are 2 countries which are situated in south direction of India. In west directions, UAE, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia. There are so many countries which are situated in west direction of India. In northwest direction, Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. There are so many countries which are situated in northwest direction of India. India has trade relation with European, Eastern Asian, Western Asian and American countries in ancient time. In ancient time, Silk Route is the major route for trade and commerce. रेशम मार्ग जो था एंशियंट टाइम में इंडिया का मेजर मार्ग था जो लैंड रूट था बेटा, ये लैंड रूट था जो मेजर रूट था जिससे इंडिया का ट्रेड जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ होता था। एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए भी इस सिल्क रूट का यूज होता था। उसके बाद ओशियनिक रूट जो है डिस्कवर किए गए। उन ओशियनिक रूट में सबसे पहले जो अपना रूट था जो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करते हुए निकलता था, उसका नाम था आशा अंतरीप मार्ग। ये एंशियंट ट्रेड रूट था इंडिया का, लेकिन ये लॉन्गेस्ट रूट था। इस कारण से एक न्यू रूट जो है ओशियनिक रूट डिस्कवर किया गया, उसका नाम था स्वेज कनाल रूट। ये स्वेज कनाल रूट था, इसके कारण से एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसके कारण इजीली एशियन कंट्रीज का ट्रेड यूरोपियन कंट्रीज के साथ होने लगा। ये जो ट्रेड रूट था ये रेड सी, मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक जाता था। राउंड फिगर में 7000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस इसमें लिखा हुआ है। अगर हम लंदन से और मुंबई के बीच की बात करें तो 9600 किलोमीटर का डिस्टेंस लंदन जो ब्रिटेन की कैपिटल है, लंदन, और मुंबई कहाँ है इंडिया में, मुंबई टू लंदन जो डिस्टेंस है वो 9600 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस कनाल के कारण से रिड्यूस हो गया। तो ये कनाल जो है फर्डिनांड डी लेसेक्स ने बनानी स्टार्ट की थी 1859 में, और 1869 में जो है ये ट्रेड के लिए ओपन कर दी गई। 1956 में इजिप्ट कंट्री जो एक अफ्रीकन कंट्री है, इसका राइट इस कनाल पर एक्सेप्ट कर लिया गया और ये कनाल जो है ये ट्रेड के लिए ओपन हो गई। अब ट्रेड में अगर हम देखें तो क्या सप्लाई किया जाता है, तो हमारे यहाँ से एशियन कंट्रीज से स्पाइसेस,
पटसन, जूट, शुगर, शुगर केन, ये सब जो है सप्लाई किया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, ये हम सप्लाई करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, और इसके बदले में वेस्टर्न कंट्रीज से जो हम इंपोर्ट करते हैं उनमें मेनली मशीनरीज, मेडिसन्स, गोल्ड, ज्वेलरीज वगैरह जो है वो हम वहाँ से, क्लोथ्स, ये सब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर है, ये स्वेज कनाल से जो है ज़्यादा हो गया वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज से। अब अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन मेन जो बनता है वो बनता है कि केप ऑफ गुड होप की इंपॉर्टेंस कम हो गई या इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस कम हो गई। केप ऑफ गुड होप मतलब आशा अंतरिक्ष मार्ग जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई स्वेज कनाल बनने से, क्यों? तो वो डिस्टेंस रिड्यूस होना जो है मेजर रीजन है। इसके बाद एक बनता है क्वेश्चन कि इंडियन ओशियन जो है उसको इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट क्योंकि इंडिया जो है वो ना तो पूरी तरह से कॉन्टिनेंटल बाउंड्री से अटैच है और ना ही पूरी तरह से ओशियनिक बाउंड्री से, तो इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि इंडिया इज कवर्ड बाय माउंटेन्स रेंजेस इन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट साइड बट 3 sides in south covered by water bodies which are in south-east direction Bay of Bengal is situated, in south-west direction Arabian Sea is situated, and Indian Ocean is situated in southern side of India. That is the reason that India is called a subcontinent. यस बेटा, अब अभी अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। मे बी ऑल स्टूडेंट्स गेट एन्जॉय एंड क्लियर ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू डिस्कस टू मी इन माय पर्सनल नंबर। हैव ए नाइस डे बेटा।